Hello everyone, welcome you back in the topic quadrilateral. In this topic we will be working on parallelogram as we all know, but in this part of this particular video we will be working on second exercise which is based on completely midpoint theorem. So let's understand what is midpoint theorem first. So midpoint theorem we have two parts. So both the parts I will discuss. If M is a midpoint of AB and N is a midpoint of AC, then we say Mn is equal to half of BC and Mn is parallel to BC. These are the 2 points one should write as under midpoint theorem. So this theorem we will be using for solving multiple questions after this. Not only this, we even need to know about its converse. The proof we did not take, but yes, it is very much required. So what is the converse? If M is a midpoint and Mn is parallel to BC, देखो, if M is midpoint and Mn is parallel to BC, then N becomes the midpoint too. Therefore, An is equals to Nc, or N becomes the midpoint too. मतलब basically both are the same thing. This is nothing but converse of midpoint and this is nothing but midpoint. Idea clear? Got it. So these are the two things one should know before we start the exercise. And another thing that what one should know is proving parallelogram. How can you prove parallelogram? First one, both the pairs parallel. Both opposite pair parallel. Second, both opposite pair equal. And third and very interesting thing is one pair. ये बहुत बार यूज होता है. One pair is parallel and same pair is equal. So we can prove it is a parallelogram, right? So let's start working on the question number 1. The very interesting question. Think about it. This is a quadrilateral and you are expected to prove that PQRS, what you can see, is a parallelogram. Okay, now you must have understood key topic midpoint theorem as in triangle. Why should that be in quadrilateral topic? So let's understand what are the PQRS are. PQRS are the midpoints of the sides. So when you see PQRS are the midpoints of the side, of course, surely this question is going to be a midpoint theorem. But midpoint theorem is used for the what is a triangle, but it is a quadrilateral. So what we have done is nothing but joining AC. AC को हमने join कर दिया. So when you join it, isn't it, you get two triangles. One is ADC. So let's write about ADC. In triangle ADC, देखो ADC देख लिया आपने. So do we have S and R are the midpoints? Check कर लो. Only focus at ADC. बाकी को छोड़ दो. Okay, do we have R and S are the midpoints? Check कर लो. So S is midpoint of AD and R is midpoint of DC, right? Midpoint है तो midpoint theorem यूज कर सकते हैं. What do I know about midpoint theorem? SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Midpoint theorem, right? Correct. Similarly, in triangle, the other triangle, if I talk about, which triangle I'm talking about, BAC or ABC, is it P is midpoint of AB and Q is midpoint of, देखो कितना easy है, BC. Okay, so do we have PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC? Reason क्या होगा? Midpoint, right? Let's know about the quadrilateral PQRS now. Very properly understand, focus at here. PQ is parallel to AC and SR is also parallel to AC. So from this and this we get PQ parallel to SR. देखो PQ is been parallel to SR. एक बात तो हो गई. Look at the second point. SR is half of AC and PQ is also half of AC. Isn't it, it gives PQ is equals to SR?
दैट मीन्स ये दो साइड्स पैरेलल भी है एंड यही दो साइड्स इक्वल भी है. सो व्हाट डू वी थिंक? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम. क्यों पैरेललोग्राम है ये? बिकॉज वन साइड इज पैरेलल एंड सेम इज इक्वल टू, देयरफॉर वी कॉल इट एज अ पैरेललोग्राम. सिंपल, वेरी वेरी इजी. ओके. हाँ, बाकी अभी यू विल बी आस्किंग ये प्रूव किया क्या, ये प्रूव किया क्या, तो वो तो हो चुका है, देख लो. देखो एस आर इज पैरेलल टू AC हमने प्रूव कर दिया, एस आर इज हाफ ऑफ AC प्रूव कर दिया, PQ इज इक्वल टू SR यहाँ पे प्रूव कर दिया, एंड ऑफ कोर्स वी प्रूव्ड इट. PQRS इज अ पैरेललोग्राम टू. दैट्स इट. सो वेरी सिंपल. इजी है ना? इंटरेस्टिंग है. सेकेंड क्वेश्चन HOTS है, हम लोग उसको बाद में करेंगे एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. ABCD इज ए रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम. Okay, ABCD is a rectangle. Fine, and PQRS are nothing but here have P, Q, R, and S. Now this, if I join, ये तो रेक्टेंगल है, आपको पता है, एंड मिड पॉइंट्स है. ठीक है, मिड पॉइंट्स आई होप यू नो दैट दीज आर द इक्वल, दिस इज इक्वल, दीज आर इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल. ठीक है ना? ओके, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू शो दैट द क्वाड्रिलेटरल इज रोमस. व्हिच क्वाड्रिलेटरल रोमस? PQRS. रोमस प्रूव करने के लिए एक चीज चाहिए, ऑल साइड इज इक्वल, दैट्स इट. ओके, एंड अगर पैरेललोग्राम हो एंड देन उसको रोमस करना है तो एडजेसेंट साइड इक्वल. ओके, रिमेंबर दैट. देखो, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल को रोमस करना है, ऑल साइड शुड बी इक्वल, एंड पैरेललोग्राम को रोमस करना है, एडजेसेंट साइड शुड बी इक्वल. राइट? तो चेक करते हैं, यहाँ पे तो पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं है, मिड पॉइंट है, बस दैट्स इट. तो हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल को क्या कर सकते हैं, रोमस प्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग और शोइंग दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे कोई भी मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं, कर भी सकते हैं. यू कैन डू दैट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इन दिस केस. तो क्यों ज़रूरत नहीं है? डायरेक्टली भी इजीली प्रूव कर सकते हैं. हाउ कैन वी प्रूव इट? इमेजिन करो कि ABCD इज अ स्क्वायर, इज अ रेक्टेंगल. देन ट्राइंगल देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्राइंगल QAP and triangle SDP. Can it be SDP? Can it be congruent? चेक कर लो. Yes, SAS टेस्ट देखते हैं. बट इज AQ गिवन इक्वल टू DS? वो तो हमने मार्क करके रखा हुआ है, लेकिन इज AQ गिवन इक्वल टू DS नहीं. हमें पता है कि AB इज इक्वल टू DC. AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल. तो हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DC. तो हाफ ऑफ AB क्या होता है? AQ इज इक्वल टू DS. ये हो गया. आई नो दैट कि AP इज इक्वल टू PD. क्यों? मिड पॉइंट है यार, और क्या है, मिड पॉइंट है. एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. रीजन क्या होगा? इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो कैन आई शो दैट और कैन आई से दैट कि ट्राइंगल QAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SDP? अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इजंट इट PQ विल बी इक्वल टू PS? PQ आई मीन टू से ये दो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. सिमिलरली आई डोंट हैव टू प्रूव इट. सिमिलरली आई कैन से दैट PS कैन बी मेड इक्वल टू SR. देख लो, PS कैन बी मेड इक्वल टू SR and SR can be made equal to QR. Therefore we get PQ is equals to PS is equals to SR is equals to QR. Therefore quadrilateral PQRS is rhombus. That's it. हो गया. देखो कितना इजी है. ओके, बाकी कुछ प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC. BD is a diagonal. Okay, BD is a diagonal. E is a midpoint of AD. E is a midpoint of a line drawn through E parallel to AB. तो ये जो है ये सारे पैरेलल ही है.
ए बी को पैरेलल मतलब सारे के सारे पैरेलल। इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, शो दैट एफ इज ए मिड पॉइंट। तो ये हम लोग एक पॉइंट ओ कंसिडर करते हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है क्या यूज होने वाला है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कैसे देखते हैं, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले उसको यूज भी कैसे करना है, लिखना भी कैसे, दैट विल सी। ट्रायंगल डी ए बी में देखो, ट्रायंगल डी ए बी में ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स मिड पॉइंट हो या कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हो, वी यूज इट इन द ट्रायंगल ओनली, राइट। सो इन ट्रायंगल डी ए बी चेक कर लो, ठीक से देखो, ए इज ए मिड पॉइंट एंड ई ओ पैरेलल टू ए बी, है ना, पैरेलल है, ए मिड पॉइंट है, तो ओ क्या होगा, वेरी क्लियर, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट। क्लियर सी बात है, देखो ई मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है, तो पैरेलल होता है। आगे अगर ई मिड पॉइंट एंड पैरेलल है तो ओ भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो गया। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है, ये होगा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। बस लिखते वक्त कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, इतना बस लिख देना है, बस दैट्स इट। ये हो गया, ओ मिड पॉइंट हो गया। अभी वही चीज़ दूसरे वाले ट्रायंगल में करते हैं, ओ तो मिड पॉइंट आएगा, मतलब ये तो मिड पॉइंट है ही। अभी वही चीज़ वो उल्टे वाले ट्रायंगल में करते हैं, मतलब ट्रायंगल बी डी सी में करते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इन बी डी सी, देखो ओ इज मिड पॉइंट, ठीक है। इज ओ एफ पैरेलल टू डी सी, यस, ऑल थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ओ एफ, द पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स गोइंग टू बी पैरेलल टू डी सी। तो ओ एफ, यस, पैरेलल टू डी सी। तो एफ क्या होगा, देयरफॉर एफ विल बी, एफ इज मिड पॉइंट टू, एंड रीजन क्या होगा, वही कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है। दैट्स इट, व्हाट इज आस्क्ड इज डन। समझ में आ गया, सिंपल इतना ही है, यस, इतना ही प्रेजेंटेशन है। आई हैव डन इट विद द प्रेजेंटेशन, इतना ही प्रेजेंटेशन है, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, बस ट्रायंगल समझ में नहीं आता तो हम लोग ट्रायंगल समझते हैं, उसके बाद वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो मत, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन very clearly, so I don't want you to read the question. I want you to just focus at this quadrilateral, that's it, nothing else. इस quadrilateral पर ठीक से फोकस करो, okay. E and F both are midpoint of AB, ठीक है। and ABCD is a parallelogram, चेक कर लो, ABCD is a parallelogram। अगर ABCD parallelogram है तो can I say that FC is parallel to AE, होगा ही ना, बिकॉज देखो DC पैरेलल टू AB तो FC भी पैरेलल टू AE हो जाएगा। देखे, देखो ये पूरा लाइन पैरेलल है, तो ये पूरा लाइन पैरेलल है, तो उसका पार्ट एंड इसका पार्ट भी क्या हो जाएगा, पैरेलल ही रहेगा 100%। देन इफ DC इज इक्वल टू AB, हाफ ऑफ DC कैन बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यस, हाफ ऑफ DC विल बी इक्वल टू FC एंड हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू AE, ठीक है। तो देखो FC इज पैरेलल टू AE एंड FC इज इक्वल टू AE, what exactly you can conclude from this? Yes, exactly. So therefore we have quadrilateral AECF, a parallelogram. Same side is equal, same side is parallel. So what it becomes? It becomes a parallelogram. That's fantastic. Simple, right? लेकिन yes, parallelogram है मतलब सारे साइड्स तो पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, AF विल बी पैरेलल टू CE। ये तो क्लियर सी बात है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो सारे अपोजिट पेयर भी पैरेलल हो जाएंगे, तो वी हैव AF पैरेलल टू CE, क्लियर, AF पैरेलल टू CE, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल एंड डायरेक्ट। लेकिन यस, करना कुछ और ही है और हम लोग कर कुछ और रहे। व्हाट आई हैव टू प्रूव कि ये जो DB है उसको ये P एंड Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो PQ है ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये हमें प्रूव करना है। चलो अभी देखते हैं। इन ट्रायंगल DQC देख लो, DQC, इन ट्रायंगल DQC इज F अ मिड पॉइंट ऑफ DC, यस, F इज अ मिड पॉइंट। FP इज पैरेलल टू CQ, चेक कर लो, इज FP पैरेलल टू CQ, देख लो,
अभी अभी हमने ये प्रूव किया ना, AF पैरेलल टू C, तो FP भी पैरेलल टू CQ हो जाएगा ना, राइट? तो therefore what happens to the P? P becomes, P is midpoint of DQ, कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, लिख लो वो रीजन। therefore क्या आएगा, DP is equals to DP is equals to PQ हो गया। यही चीज मैं ट्रायंगल PAB में करता हूं। नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, PAB, इधर ठीक से देखो, वहां पे क्या है, E मिड पॉइंट है, राइट? E is a midpoint and देख लो, try to understand, E is a midpoint and EQ is parallel to AP according to the parallelogram। ये जो येलो कलर है वो तो पैरेललोग्राम है, मतलब सारे सेट्स पैरेलल हो जाएंगे, तो EQ विल बी पैरेलल टू AP, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, Q इज मिड पॉइंट, दिस इंप्लाइज Q इज मिड पॉइंट। Q मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, PB का है Q मिड पॉइंट, मतलब BQ इज इक्वल टू PQ। अभी ये ठीक से देख लो, डज इट प्रूव दैट ऑल थ्री पार्ट्स आर इक्वल? यस, DP विल बी इक्वल टू PQ विल बी इक्वल टू PQ। देयरफॉर क्या हो गया, मैंने प्रूव कर दिया कि इट इज गेटिंग ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ओके? ट्राइसेक्ट का मतलब, जैसे बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स होता है, वैसे ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। दैट्स इट, गॉट इट? होप यू अंडरस्टूड इट। हाँ, अभी मुझे बताओ, ये ज़रूरी था क्या, ये जो मैंने किया क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाया पहले, ये ज़रूरी था क्या? Yes, of course. This yellow color to be proven parallelogram, because of that only we got these lines are parallel to each other. ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल मुझे तभी मिले, अदरवाइज आई वुडंट हैव गॉट दैट देम एज पैरेलल। तो इसको पहले प्रूव किया और उसके बाद ये प्रूव किया। देखो कितना प्रूफ इंटरेस्टिंग है ना? लगने के लिए ऐसे आप लोग देखोगे ना, ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना डिफिकल्ट है, लेकिन है कुछ नहीं, वही चीज़ हम लोग बार बार कर रहे हैं, वही चीज़ जो यूक्लिड ज्योमेट्री में देखा, हाफ ऑफ दैट, हाफ ऑफ दिस, पैरेलल, ऑल दैट वी आर डूइंग अगेन एंड अगेन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। चलो चलो ये मैं देखते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने, जस्ट इमेजिन, एंड इसकी मिड पॉइंट मैंने लिए और उसको ज्वाइन किया, क्या लगता है आपको ये क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? नहीं समझ में आ रहा ना? बताता हूँ। इमेजिन करो कि मैंने ये ABCD लिया और ये मैंने PQRS लिया, DB को ज्वाइन किया। डायग्राम याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली यही किया था हमने। चलो देखते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो डू वी हैव Q एंड P आर द मिड पॉइंट्स? मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD देखो, ABD में P इज ए मिड पॉइंट, Q इज ए मिड पॉइंट, बराबर है ना? P एंड Q बोथ आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? PQ इज पैरेलल टू BD एंड PQ इज हाफ ऑफ BD। मैं बस डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन दिस क्वेश्चन। सिमिलरली RS इन ट्रायंगल BDS, इन ट्रायंगल BDC, सॉरी। तो in triangle BDC we have S and R both are midpoints. So do we have SR is parallel to BD and SR is equals to half of BD. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ लो। तो PQ पैरेलल टू BD एंड SR पैरेलल टू BD का मतलब होता है PQ पैरेलल टू SR, एंड PQ इज हाफ ऑफ BD एंड SR इज हाफ ऑफ BD का मतलब होता है PQ इज इक्वल्स टू SR। तो अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? पैरेलल बनेगा, सॉरी पैरेललोग्राम बनेगा। सो देयरफॉर वी हैव क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बट लेकिन एक क्वेश्चन तो अनआंसर्ड है, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या पूछा है मालूम है क्या? इफ आई जॉइन PR एंड QS दे बाइसेक्ट एट O। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल की? बट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisects each other. That's it. They bisect each other. Once you get to know कि they bisect each other, finished, PR bisect QS. That's it. आपका proof is done.
है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, बस स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी भी है एंड सिंपल भी है। ओके, सो वही चीज़ जो हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में की थी वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, right angle at C, a line through the midpoint of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. ओके, तो ये मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन है, तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। फिनिश्ड। तो पहली चीज तो हमें पता चले कि डी इज मिड पॉइंट, और वही तो प्रूव करना है। ओके, कौन सा मिड पॉइंट, इजीली हो गया। अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये एम डी परपेंडिकुलर है। देखो ये पैरेलल लाइन से ये एंगल 90 है, तो ये 90 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी हो जाएगा 90। काम खत्म। CM ज्वाइन करते हैं, इज इक्वल टू एम, बस इतना प्रूव करो, ये बाद में करेंगे। CM इज इक्वल टू एम, बहुत सिंपल है। देखो डी से मिड पॉइंट मतलब ये इक्वल हो गया। कैन वी प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉमन साइड एक 90 एंड इक्वल, कॉन्ग्रुएंसी हो गया। CM इज इक्वल टू एम आ गया, किससे, CPCT, है ना, बराबर है। देखो CM इज इक्वल टू AM CPCT। मैं पर्पज ही नहीं कर रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू डू इट नाउ, ठीक है। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो AM देखो, इज AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यस, AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी। जो मिड पॉइंट है तो वो तो हाफ भी होता ही है, इक्वल होता ही है, फिर हाफ होता है, तो AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो AM इज इक्वल टू CM प्रूव किया एंड AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूव किया, दैट्स इट। चलो अगेन देखते हैं डी इज मिड पॉइंट, कैसे प्रूव करना है डी इज मिड पॉइंट। देखो M इज मिड पॉइंट एंड DM पैरेलल टू BC, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट, कौन सा मिड पॉइंट थ्योरम। MD परपेंडिकुलर टू AC कैसे करना है, MD is parallel to BC, angle C is 90, corresponding angle equal, therefore MD is equals to MD is perpendicular, तो वो एंगल 90 हो गया। CM इज इक्वल टू M कैसे करना है, CM को ज्वाइन किया, दो ट्रायंगल मिल गए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, CM इज इक्वल टू M मिल गया। कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है, SAS टेस्ट, दैट्स इट। हाफ AB तो लॉजिकल है, सिंपल लॉजिक है, दैट्स इट, डन, आपका एक्सरसाइज डन। हाँ, आई नो दैट हम सेकंड क्वेश्चन नहीं किया है, तो हम लोग कल करेंगे विथ सम सॉल्व्ड क्वेश्चन। सॉल्व्ड क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेट मी टेल यू, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ 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 डू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एज अर्ली एज पॉसिबल इफ यू आर द VPQ स्टूडेंट। Okay, so quickly we'll complete this and we'll shift to the circle topic because that would be the last topic of the mathematics. Let me tell you one thing, okay, it is very early that your school is deciding to take the exam and at the same time the syllabus is too much. Okay, so that's why it is becoming difficult for us to complete the syllabus. But yes, the Shantiniketan students have got less topic than you and they have got exam in the last week of October, that means in the next month. See how nicely we will be working and then we will be taking revision and everything. Topics are less and this is time is more, and in your case topics are more and the time is less. So unfortunately it is not properly happening, I can understand that, but try to manage from your side. Okay, be serious and work for mathematics. Thank you so much, bye bye, see you.